students, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, classification of objects. Introduction. Throughout the day we come across a number of objects around us. We see a table, a chair, the book and a pen or pencil. Through the window we may see the sky and clouds. Observe the surroundings again. Make a list of several of the objects seen. How would you describe them? Would you use such words such as large, small, red, blue, cold, hot, heavy, light, rough, smooth? Each object differs from the others in terms of shape, size, color, texture, weight, transparency and so on. देखिए डेली हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, है ना? हम चाहे स्कूल में हो, हम घर में हो, हम पार्क में, हम मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. विंडो के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें स्काई, हमें क्लाउड्स, ये सब नज़र आते हैं. तो अगर हमें आपको ये बोल दिया जाए कि एक लिस्ट बनाइए आपकी जो आपने चीज़ें देखी और फिर उनको क्लास आप डिस्क्राइब करेंगे, तो कैसे करेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्मूथ है या रफ है? तो देखिए हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ़र करता है इन टर्म्स ऑफ शेप है या साइज़ है या कलर है या ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. Take a more practical example. If you observe the wardrobe at your home, you will find clothes of various family members arranged systematically. You may find your clothes at a particular place in the wardrobe, while those of your father may be at another place and so on. In the same way in science, where we have to study a large number of objects, we must arrange them in certain groups. It will enable us to observe and record similarities and dissimilarities between various objects. This further helps us in many ways. For example, if we know the properties of one member object of group, it may help us to know the other members of that group. It also helps us to search out an object easily. The process of grouping objects based on some known criteria is called classification. It may be based on similarities and dissimilarities of objects. The arrangement and classification of things in groups help us to identify them easily, locate them without delay, and study their properties conveniently. These properties include solubility in water, conduction of heat, conduction of electricity, transparency, diffusion, response to magnet, etc. We shall now discuss these properties in brief. अच्छा चलिए एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि आपके घर में आपका वार्डरोब है. अब आप इसमें क्लोथ्स देखें तो बहुत ही वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड होते हैं. आपको अपने कपड़े एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेंगे, आपके फादर के दूसरे जगह पे होंगे, आपकी मदर है, आपके सिबलिंग है, हर किसी को मतलब इस तरह से अरेंज किया गया है कि अगर आपको कोई कपड़ा चाहिए होगा या आपकी मदर को उनका आपको अपना क्लोथ चाहिए तो ईजिली वो निकाल सकते हैं, राइट? बट अगर आपके वार्डरोब में सारे कपड़े मतलब सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड नहीं है, ऐसे ही रखा गया है, तो क्या आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं? नहीं ना. तो इसीलिए देखिए चीज़ों को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जैसे हम शॉप में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखिए हर ब्रांड्स के जैसे बिस्किट्स हैं अलग होते हैं, अलग अलग उनकी स्टैकिंग की जाती है. चॉकलेट्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, ये बहुत सारी स्पाइसेस हैं, चिप्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, राइट? तो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकें, राइट? और क्लासिफिकेशन आपका देखिए इसके बेस पे भी होता है कि उन ऑब्जेक्ट के सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनमें क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, राइट? तो इन प्रॉपर्टीज़ में आपका आता है जैसे कि देखिए वाटर की में सॉल्युबिलिटी या कंडक्शन ऑफ हीट या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपेरेंसी, है ना? तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल. नंबर 1 और 5.1 इज सॉल्युबिलिटी. Solute is a substance that is dissolved in a solution, and the substance in which the solute gets dissolved is called a solvent. Water is a liquid which can dissolve many substances in it. देखिए solute वो substance होता है जो आपके एक solution में आपका dissolved होता है, और जो आपका substance जिसमें solute आपका dissolve होता है that is called solvent. तो water एक ऐसा liquid है जिसमें बहुत सारे जो substance है वो dissolve हो जाते हैं. That is why it is called universal solvent. It can dissolve solids like salt and sugar, liquids like milk, juices, and gases like oxygen and carbon dioxide. For example, in a glass of lemonade, lemon juice and sugar are solutes while the water is a solvent. देखिए क्योंकि वाटर अपने
अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसमें आपके सॉलिड डिसॉल्व होते हैं जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट, इसमें आपके लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे मिल्क है या जूसेस है, एंड गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अच्छा, जैसे लेमनेड आपने पिया होगा, नींबू पानी, राइट, इसमें आपका क्या होता है, जो आपका लेमन जूस और जो शुगर या हम सॉल्ट ऐड करते हैं वो आपका सॉल्यूट होता है, जबकि वाटर इज अ सॉल्वेंट। अ सब्सटेंस दैट dissolves in water is said to be soluble. Salt and sugar are soluble substances. Mercury and oil do not dissolve in water, they are insoluble. अच्छा, जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होते हैं जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर, ये आपके सॉल्युबल सब्सटेंस हैं। जो सब्सटेंस आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल, जैसे कि मर्क्यूरी है या फिर ऑयल। The amount of solute that will completely dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature is called solubility. देखिए, जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कम्प्लीटली आपका डिसॉल्व हो जाएगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। एग्जांपल्स ऑफ सच ग्रुपिंग्स आर एज फॉलोज। तो देखिए, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ना मटेरियल्स को, थिंग्स को, कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। जैसे कि टेबल में आपको दिया गया मैटर, आपका मैटर है सॉलिड, आपके सॉल्युबल है शुगर, कॉमन सॉल्ट, जबकि इनसॉल्युबल की अगर हम बात करें तो मेटल, स्टोन, वुड, सैंड एंड चॉक पाउडर, है ना, ये आपके सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स। लिक्विड्स में आपके आते हैं एंटीफ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, अल्कोहल, विनेगर एंड लेमन जूस, ये आपके सॉल्युबल है। जबकि अगर आप इनकी बात करें, ये जो सब्सटेंस है ये आपके इनसॉल्युबल है। नंबर 3, गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके जैसे सोडा वाटर में होता है डिसॉल्व, या ऑक्सीजन है आपका, ये आपके सॉल्युबल है। जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्टिविटी 1, टेक 1 glass milk in a coffee shaker, add 2 teaspoons of sugar and 1 teaspoon of coffee powder in it. Close the lid and shake well. Pour the coffee in a glass tumbler. What happens to the coffee powder and the sugar? Do they disperse or settle down in the milk? देखिए, आपको 1 ग्लास मिल्क लेना है कॉफ़ी शेकर में, उसमें 2 चम्मच आपने शुगर डालनी है और आपने उसमें 1 चम्मच डालना है कॉफ़ी पाउडर। फिर उसके लिड को क्लोज करके उसको अच्छे से शेक करना है। फिर इस कॉफ़ी को आपने अपने ग्लास टम्बलर यानी कि कांच के ग्लास में डालना है। तो आप जो कॉफ़ी पाउडर और शुगर आपने उसमें डिसॉल्व किया था उसके साथ क्या हुआ, क्या वो डिस्पर्स हुआ या फिर मिल्क में सेटल डाउन हो गया? तो ये करके देखिएगा आप एक्टिविटी, आपको पता चल जाएगा। 5.2, हीट कंडक्टिविटी। You know that heat is transferred through a substance or from one substance to another by direct contact. Some substances transfer heat better and more rapidly than other substances. Such substances are said to be good heat conductors. Some substances do not transfer heat and are said to be bad heat conductors. Hence, things can be grouped as good conductors and bad conductors of heat. Examples of some materials of each group are as follows. Good conductors, metals such as silver, copper, aluminium, iron, mercury, etc. Bad conductors, wood, plastic, stones, leather, paper, cotton, asbestos, air as well as oil gases. देखिए, आपको पता है कि हीट ट्रांसफर होती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हीट को बेटर ट्रांसफर करते हैं या रैपिडली ट्रांसफर करते हैं कंपैरेटिवली अदर सब्सटेंस। तो जो हीट को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं बैड कंडक्टर्स। तो देखिए, इसी तरह से मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, बैड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स के आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड बैड कंडक्टर्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं। 5.3, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electrical conductivity is the ability of an object to allow electric current to pass through it. Based on electrical conductivity, substances can be divided into 2 categories, conductors and insulators. अच्छा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एबिलिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो हैं आपके कंडक्टर्स एंड insulators. Conductors, materials that allow electricity to move easily through them are called conductors. Most metals are good conductors of electricity.
Silver, copper, aluminium and mercury are among the best conductors. Water is also a good conductor of electricity. Insulators, materials that do not allow electricity to flow freely through them are called insulators. Rubber, glass, wood, plastic and air are insulators. देखिए वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं वो आपके होते हैं कंडक्टर्स. इसमें आपके ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट. सो दीज आर द मेटल्स विच आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड वाटर जो है आपका ये भी एक गुड कंडक्टर है. ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स आपके वो मटीरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते, राइट. फॉर एग्जाम्पल्स दीज आर इंसुलेटर्स. 5.4 Transparency. When light strikes a substance and passes through it, the substance is said to be transparent. Objects seen through transparent substances appear clearly. Some substances block all the light and are called opaque. Objects cannot be seen through opaque substances. If you look through a piece of waxed paper, you can see light, but the object you see is unclear and lacks detail. Substances that transmit light but not detail of that light are said to be translucent. Things can be grouped as transparent, opaque and translucent. Examples of objects belonging to them are as follows: transparent, glass, water and air; translucent, frosted glass, wax paper, muddy water, fog and mist; opaque, all metals, wood and stone. देखिए जब लाइट किसी सब्सटेंस पे स्ट्राइक करती है और उससे पास हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट है. ओके मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम क्लियरली देख पाते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट का जो पाथ होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ओपेक. और ओपेक सब्सटेंस के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. अच्छा अगर आप कभी ना वैक्स्ड पेपर के थ्रू देखेंगे तो आपको लाइट नज़र आएगी, बट जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा ना वो अनक्लियर होगा और उसमें उसकी डिटेल्स नहीं होंगी. तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये लाइट को तो ट्रांसमिट करते हैं बट उसमें हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स नहीं पता चल पाती. तो ऐसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट. तो थिंग्स को अब एक दूसरा ग्रुप है जिसमें हम उसको ग्रुप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. जैसे ट्रांसपेरेंट में आपका आ गया ग्लास, वाटर एंड एयर, उसके आर पार हम देख सकते हैं, है ना. ट्रांसलूसेंट में आपके आगे जैसे ये सारे, इसमें सिर्फ हमें हल्का सा नज़र आएगा बट हमें डिटेल्स उस ऑब्जेक्ट की नहीं पता चलेंगी. एंड ओपेक जिसके आर पार तो देखना कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, राइट. एक्टिविटी 2, ग्लास एंड क्लियर वाटर आर ट्रांसपेरेंट. अब हमें ये शो करना है कि ग्लास यानी कि कांच और जो बिल्कुल क्लियर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट है. मेथड: राइट साइंस ऑन अ वाइट पेपर एंड पेस्ट द पेपर अराउंड अ ग्लास टम्बलर with the writing facing the surface of the glass tumbler as shown in figure A. Through the glass you can see the writing on the paper clearly. Now pour clear water in the glass tumbler so that the water level goes up beyond the word sign as shown in figure B. Now again through the glass full of water you can still see the writing easily. It shows both glass and clear water are transparent. देखिए आपको यह करना है इस एक्टिविटी में. साइंस इस तरह से आपको लिखना है साइंस, राइट, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है. पेपर पे लिखा, फिर उस पेपर को आपने पेस्ट करना है ग्लास टम्बलर में जो कांच का आपका ग्लास है, राइट. और इस तरह से करना है कि जो राइटिंग है यानी जो आपने साइंस लिखा है वो ग्लास टम्बलर के सरफेस को फेस करे. अब आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा क्लियरली साइंस लिखा हुआ. अब आपने क्या करना है, उसी ग्लास में आपने कुछ क्लियर वाटर उसमें पोर करना है और इस तरह से पोर करना है कि उसका लेवल ये जो साइंस लिखा है ना उससे ऊपर हो. फिर आप देखेंगे तो आपको साइंस नज़र आएगा. तो इससे क्या शो होता है कि दोनों ही यानी कि ग्लास एंड क्लियर वाटर ये आपके दोनों ही ट्रांसपेरेंट है. 5.5 रिस्पॉन्स टू मैग्नेट. Long ago in a part of Turkey known as Magnesia, a Greek shepherd discovered a type of rock that could attract materials that contained iron. The Greeks called this rock magnetite or magnet. Some materials are attracted by magnet are known as magnetic. Some materials do not respond to and are not attracted by magnet. They are called non-magnetic. Materials can be grouped as magnetic or non-magnetic. Examples of magnetic and non-magnetic materials are as follows: magnetic, iron, nickel, cobalt. Non-magnetic, aluminium, silicon, wood and plastic. देखिए बहुत टाइम पहले एक जगह थी टर्की में मैग्नीशिया. एक ग्रीक शेफर्ड ने एक
डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक को डिस्कवर्ड किया जो कि मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, जिनमें आयरन होता था। तो ग्रीक्स ने उसका नाम रखा मैग्नेट। ओके, तो देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं दो कैटेगरीज में से, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, राइट। अब ये जो मटेरियल है ये आयन की तरफ आपकी मैग्नेट की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, जबकि ये जो मटेरियल्स हैं आपके ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। सो दीज आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 5.6 lustre. The lustre of a mineral describes the way a mineral reflects light from its surface. Certain minerals reflect light just as a highly polished metal does. The mineral in the figure given alongside has a metallic lustre. Minerals that do not reflect much light often appear dull. Such minerals have a non-metallic lustre. Some objects, especially metals, can be grouped as lustrous and dull. Examples of lustrous and dull objects are as follows. Lustrous: silver, copper, gold, graphite, diamond and mercury. Dull substance: quartz, tourmaline, malachite, serpentine and iron. लश्चर का मतलब क्या होता है, शाइन. ओके, तो लश्चर मतलब किसी भी मिनरल का कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मिनरल जो है वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी सरफेस से. तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जैसे कि आपके हाईली पॉलिश मेटल करते हैं. जैसे कि आप इसमें देखिए फिगर में नज़र आ रहा है कितना शाइनी है ना, ये लश्चरस है. तो देखिए मेटल्स को हम फिर आपके जैसे मेटल्स हैं आपके ज़्यादातर आपके शाइनी होते हैं, राइट. आपके कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने शाइनी नहीं होते. तो ऑब्जेक्ट्स को फिर हम दो ग्रुप में अगेन उनको ग्रुप कर सकते हैं. लश्चरस जिनमें शाइन हो, फॉर एग्जाम्पल दीज, एंड डल सब्सटेंस जिनमें शाइन नहीं होती है. 5.7 हार्डनेस. The ability of a thing to resist being scratched is known as its hardness. The things which can be easily scratched are said to be soft or having softness. One thing to remember is that hardness is a comparative property. For example, topaz is softer than diamond but harder than quartz and feldspar. However, things can still be grouped as having hardness and softness. Example of things belonging to hard substances and soft substances are as follows. Hard substance: diamond, iron, carborundum, topaz, quartz and granite. Soft substance: gold, talc, gypsum and calcite. हार्डनेस का मतलब क्या होता है, देखिए कि मतलब कितना उसको स्क्रैच किया जा सकता है, राइट. जिसको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हार्ड है. जिसको हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं वो सॉफ्ट है. तो अगेन आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके हार्डनेस के बेसिस पे, राइट. जैसे हार्ड सब्सटेंस में आपकी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सॉफ्ट सब्सटेंस में आपके ये सारे आते हैं. 5.8 सिंकिंग एंड फ्लोटिंग. Density of an object decides whether it sinks in or floats in a liquid. The measurement of the amount of mass in a given volume of an object is called its density. It can be calculated by dividing its mass by its volume. For example, any object, aluminium with a mass of 27 grams and a volume of 10 centimeter cube has a density of 2.7 grams per centimeter cube or 2.7 gram per centimeter cube. Since the density of water is 1 gram per centimeter cube, this object is more dense than water and would sink. Another object, wood, with density of about 0.8 gram per centimeter cube floats in water because its density is less than that of water. As such objects can be grouped as substances which sink or float on water. Examples of sinking and floating substances are as under. Substances that sink: aluminium, lead, mercury, steel, granite and iron. Substances that float: wood, wax, ice, paper and plastic. अब देखिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बेसिस पे भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो सिंक करेगा या वो फ्लोट करेगा. अच्छा, अब सिंक या फ्लोट कैसे करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट है जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो पानी में सिंक करते हैं. जैसे कि इसमें एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दिया गया है, राइट. अब हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. जैसे आपको मास दिया गया है 27 ग्राम्स एंड वॉल्यूम दिया गया, तो हम यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हैं.
वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, यानी वाटर से ज़्यादा है, वो सिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी सब्सटेंसेज विल सिंक। जबकि वो सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो आपके क्या करेंगे, वो पानी में फ्लोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, ये सारे आपके substance will float on the surface of water. Key points. The process of grouping objects based on some known criteria is called classification. The substance that is dissolved in the solution is called the solute, and the substance in which the solutes get dissolved is called the solvent. The substances that transfer heat are said to be good heat conductors. The substances that do not transfer heat are called bad heat conductors. Electrical conductivity is an ability of an object to allow electric current to pass through it. Materials that do not allow electricity to flow freely through them are called insulators. When light strikes a substance and passes through it, the substance is said to be transparent. The substances that block light are called opaque. Some materials are attracted by magnet and are known as magnetic. The ability of a thing to resist being scratched is known as its hardness. Density of an object decides whether it sinks in or floats on liquid. Children, I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ों को अलग अलग बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें उनको स्टडी करने में आसानी रहती है, राइट? एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।